Hey guys, welcome to Pashut Vidya. We are discussing about the 19th century social and religious reform, and we just completed about the Raja Ram Mohan Rai, that how he create a an Indian Renaissance, and we call the father of Indian Renaissance, and how the Raja Ram Mohan Rai established the Brahmo Samaj and promote the monotheism and rational worship. And then after he campaigning about the anti-sati campaign, and he promoted as a abolition of sati pratha under the regulation act 1829. Then after the Ishwar Chandra Vidyasagar is come, like Raja Ram Mohan Rai, he abolished the sati pratha, but after the abolition of sati pratha, there is a very difficult situation for widows, because that in society the society is not accepting the widows, and so that's why discrimination is against women is more. So that's why with the help of Ishwar Chandra Vidyasagar, he promoted the widow remarriage and advocacy and campaigning about the widow remarriage right, and resulting in the Widow Remarriage Act under 1856. He cited the Vedic texts, published and prophet, and financially support the early remarriage despite the social opposition. यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अंतर्गत महिला के अधिकार पे एक एक कदम आगे बढ़ के समाज पे जो महिला की स्थिति थी वो सुधारने का प्रयास किया, और उसी के चलते जो विडो रीमैरिज एक्ट प्रसार किया गया. एंड ही ऑल्सो प्रमोट द गर्ल्स एजुकेशन पायोनियर, यानी कि ही एस्टेब्लिश द 35 गर्ल्स स्कूल इन बंगाल, एंड इसको बेंथोक कॉलेज स्कूल भी कहते हैं. He personally convinced the relevant parent to educate their daughter, and often offering the financial incentive from his own resource. Like अभी जो बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ कैसे सरकार कैंपेनिंग चलाती है, इस तरह से ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी अपनी रिसोर्स की मदद से फाइनेंशियल हेल्प भी की थी. एंड also promote the educational reformer, like simplified the Bengali alphabet and revolutionized the language learning with his premier Borno Porichoy, यानी कि as a principal of Sanskrit college. He always modernized the curriculum and opened the admission to non-Brahmin, यानी कि उस समय ब्राह्मण को ही एजुकेशन प्राप्त करने का अधिकार था, लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने नॉन ब्राह्मण को भी एडमिशन ओपन किया था. एंड ही ऑल्सो oppose the child marriage and polygamy. Polygamy यानी कि when the one man marriage with many women. And despite the modesty, he donate much of his income to support the poor and fund the scholarship and provide the medical care during the Bengal famine. And Vidyasagar combined the Sanskrit scholarship with the Western rational thought. His reform created lasting change in the Indian society, despite his orthodox opposition. यानी कि उस समय जो परंपरावादी थे, जो वर्ण व्यवस्था और पितृ समाजवादी विचार रखते थे, पैट्रियार्कल आइडियोलॉजी, उसकी ओपोजिशन के बाद भी वुमेन्स के राइट और एजुकेशन के लिए उसने वकालत की. एंड ही कैंपेन अबाउट द वुमेन्स राइट. नाउ नेक्स्ट इज दयानंद सरस्वती, जिसमें हमने बात की थी पहले कि 19th सेंचुरी के सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म है वो मेनली टू डिवीजन है, एक तो रिफॉर्मरिस्ट एंड रिवाइवलिस्ट. यानी कि जो दयानंद सरस्वती है वो रिवाइवलिस्ट है, रिवाइवलिस्ट. यानी कि दयानंद सरस्वती ने वेदों के आधार पर धर्म और सामाजिक सुधार किए. उसने दयानंद सरस्वती ने एक मंत्र दिया था, वेदों की तरफ पाछा फरो, यानी कि वेदिकल रिवाइवल. द दयानंद सरस्वती एडवोकेट द रिटर्निंग ऑफ द टू प्योर वैदिक टीचिंग एंड प्रिंसिपल एंड बिलीव देयर कॉम्बिनेशन ऑल द साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल नॉलेज. यानी कि जो दयानंद सरस्वती है वो वेस्टर्न एजुकेशन उसने प्राप्त नहीं किया था, लेकिन उसने रैशनल माइंड से जो भारतीय समाज में उस समय जो बंदी थी, जो एक तरह से
पर्दा प्रथा और वर्ण व्यवस्था थी और महिलाओं के जो साथ अन्याय हो रहा था उसको विरोध उसने वेद को आधार बनाकर किया था। एंड ही ऑल्सो अगेंस्ट द आइडियल वर्शिप, he strongly opposed the ritualism and superstition and encouraged the direct connection with the divine without the physical representation। यानी कि दयानंद सरस्वती ने जो ब्राह्मणवाद है कि जो पुजारी रहता है वही स्पिरिचुअल आइडिया को कनेक्ट कर सकता है, इसको खारिज किया और उसने बताया कि आइडियल वर्शिप के बजाय डायरेक्टली हम अपनी डिवाइन पावर को वर्शिप कर सकते हैं। एंड ही अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम एंड दयानंद सरस्वती द रीडायरेक्ट द बर्थ बेस्ड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि जो ऋग्वेदिक काल था उस समय क्या था कि जो कास्ट सिस्टम थी वो not on the basis of birth but on the basis of the economic activity, and he promote the equality and dignity for all regardless of social background, and he social protection. Dayanand Saraswati established the Arya Samaj movement and fought against the harmful practice like child marriage and advocating for the welfare and right of vulnerable group। यानी कि जो चाइल्ड मैरिज है उसका भी विरोध किया और वनरेबल ग्रुप यानी कि जो निम्न जाति के थे उसके भी राइट को प्राप्त करने के लिए मदद की, इसलिए आर्य समाज की स्थापना की। और उसने आर्य समाज की सबसे पहले स्थापना मुंबई में की थी और उसके बाद उसका सेंटर लाहौर ले गए थे। नाउ नेक्स्ट वी लुक एट स्वामी विवेकानंद who promote the Ramakrishna Paramahansa thought as the Ramakrishna mission, and the Ramakrishna Paramahansa is the major figure in Bengal Renaissance, and his teaching, especially those on unity of the religious and importance of love and devotion, continue to influence today। यानी कि जो रामकृष्ण परमहंस के जो आधुनिक विचार थे उस समय थे, जो वेदांत पर विचार थे उसको प्रमोट करने के लिए रामकृष्ण मिशन चलाया गया था स्वामी विवेकानंद के अंतर्गत। एंड द स्वामी विवेकानंद इज द very known about that he addressed the Parliament of World Religious in Chicago and introduced the Hindu philosophy to West, and the earning the international recognition about the Indian religions। And Vivekananda emphasized the universal religious harmony and challenged the Western misconception about the Indian culture। यानी कि स्वामी विवेकानंद ने भारतीय समाज और जो स्पेशली वेदांत के दर्शन है उसको वर्ल्ड शिकागो परिषद में अपना इंट्रोड्यूस किया था। एंड ही प्रमोट द ट्रू नेचर अबाउट दैट इंडियन फिलोसफी, एंड अलोंग विद दैट एज अ स्पिरिचुअल लीडरशिप ही स्प्रेड द रामकृष्ण's message of universal brotherhood through lecture and writing, and by interpreting the Vedantic text in the accessible language। And he is taught that all religious lead to the same ultimate reality। यानी कि उसने एक एग्जांपल दिया था कि जिस तरह से हर क्षेत्र से नदी अलग अलग रास्ते से नदी जाती है और आखिर में समुद्र में मिलती है, इस तरह से सारे रिलीजियस का एक ही उद्देश्य है जो जिसके लिए जो आगे चल के एक रियलिटी साबित होगी। And his strength based on spirituality inspired Indian during the independence struggle। And he also founded the Ramakrishna Mission in 1897 for the education, health and humanitarian work। The organization pioneered the integrating the spiritual practice with the social service under his principle, the service to humanity is the service to God। यानी कि गरीब की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा करने के बराबर है। दिस मैसेज नाउ operates the hundreds of centers worldwide। The Vivekananda practiced Vedanta applied the spiritual insight to real world problem। यानी कि जो उस समय तक शंकराचार्य के अंतर्गत जो वेदांत की सोच थी उसको प्रैक्टिकल तरीके से विवेकानंद ने प्रस्तुत किया था, और जो वेदांत की प्रैक्टिकल इंस्पिरेशन जो स्पिरिचुअल सोच थी उसको रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए उसको यूज किया। और जो किस तरह से जो सर्विस टू ह्यूमैनिटी यानी कि गरीबों की सेवा करो वही प्रभु सेवा है, इस तरह से एक प्रैक्टिकल रिलीजियस थॉट प्रेजेंट किया।
and his message about the arise, awake, and stop not till the goal the reached is continued to inspire the millions globally despite his short 39 year life। यानी कि उसके जो जीवन काल था उसमें उसने कई भारतीय समाज और भारतीय धर्म को एक तरह से विश्व ग्लोबल लीडर बना दिया। स्वामी विवेकानंद कई बार कहते थे कि जो वेस्टर्न है वो साइंस में प्रगति कर गया, लेकिन आध्यात्म में ईस्टर्न यानी कि भारत का महत्व रहेगा और भारत की मदद से भारत विश्व गुरु बन सकता है, क्योंकि भारत के पास स्पिरिचुअल नॉलेज ज्यादा है। इसलिए रिवाइवल ऑफ द स्पिरिचुअल नॉलेज इज रिक्वायर्ड नीडेड। नाउ वी लुक एट द सैयद अहमद खान who start the Aligarh movement, and he promote the Islamic learning with the modern scientific education. For that he founded the Muhammad Anglo-Oriented College in 1875, and which later become the Aligarh Muslim University, and create the institution that blended the Islamic learning with the मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन। यानी कि जो इस्लाम में जो कुरीति थी उसको दूर करने के लिए मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन को भी प्रमोट किया सैयद अहमद खान ने। एंड ही promote the religious modernization and advocate for rational interpretation of Islamic compatibility with the modern science। यानी कि जो इस्लाम की जो व्याख्या है उसको रेशनल थॉट से इंटरप्रिटेशन करने की बात की। एंड ही वर्क द reconcile the Western education with the Islamic tradition, and for that the community bridge builder, and someone called him as the promoter of Hindu-Muslim unity and cooperating during the British rule। लेकिन जो बाद में इस तरह जो शुरुआत में उसने हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात की थी, लेकिन आगे चल के सैयद अहमद खान ने ही मुस्लिमों को ब्रिटिश के अंतर्गत काम करने की सलाह दी, क्योंकि उस समय क्या था कि जो रोजगार थी और इकोनॉमिक जो एम्पावरमेंट थी वो लिमिटेड अपॉर्चुनिटी थी। सो दैट्स व्हाई ही प्रमोट दैट इफ मुस्लिम वांट टू कैन गेट बेनिफिटेड, यानी कि मुस्लिमों के लाभ के लिए उसने आगे चल के सैयद अहमद खान ने कहा कि मुस्लिमों को अंग्रेजों की साहत में रहना चाहिए, जिससे उसका प्रोत्साहन हो सके और वेस्टर्न एजुकेशन से उसका रिफॉर्म हो सके। और आगे चल के वही जो पाकिस्तान और मुस्लिम और डिवाइड एंड रूल की जो भूमिका थी उसमें सैयद अहमद खान ने भी अपना भाग दिया था। नाउ वी लुक एट दैट इम्पैक्ट ऑन द इंडियन सोसाइटी एंड द वुमेन्स रिफॉर्म। यानी कि हम एक पेज में हम जो वुमेन रिलेटेड जो भी रिफॉर्म हुए थे उसको एक ग्लांस में देख लेते हैं। द अबोलिशन ऑफ सती, वी ऑलरेडी डिस्कस दैट, एंड फीमेल एजुकेशन ड्यूरिंग द 1850s, यानी कि रिफॉर्म अंडर द विद्यासागर फुले एंड रामाबाई established the girls school across the India. By 1882, the nearly 2,700 girls schools existed with the 1,27,000 students, and education was the deemed essential for the women's empowerment and national progress. Next is the Widow Remarriage Act. We discuss about that Vidyasagar is campaigning about that Remarriage Act and promoted as an act. Now the Age of Consent Act, यानी कि जो चाइल्ड मैरिज थे उसको रोकने के लिए जो मिनिमम एज है मैरिज की वो डिसाइड की गई। द राइज द मैरिज एज ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम 11 to 12 year। We seem that 12 year is small, but at that time it is the like earlier time of child marriage, यानी कि बच्चे का जन्म भी नहीं होता था तब से ही शादी नक्की हो जाती थी। इसलिए जो 12 ईयर की गई उस समय के लिए अच्छी थी। एंड आफ्टर द एडवोकेशन ऑफ द रिफॉर्मर मालाबारी एंड रमाबाई, वन ऑफ द मेजर केस इन द दैट टाइम द हाई कोर्ट इज अबाउट द रमाबाई। उस समय जो रमाबाई है उसकी एज 11 साल थी और उसकी शादी हो गई थी, और जो जिसके साथ शादी हुई थी वो एल्डर एज का था जिसकी मौत हो गई थी। इसी वजह से रमाबाई की वजह से केस लड़ा गया और वहीं से एक एज ऑफ कंसेंट एज एक्ट
पसार हुआ। नाउ वी लुक एट द वुमेन्स एसोसिएशन, यानी कि जो वुमन की कंडीशन सुधारने के लिए सबसे पहले तो पुरुष आए थे, लेकिन बाद में महिलाओं ने संगठन बनाए थे, जिसके अंतर्गत इसमें आगे चल के रिफॉर्म हुए थे। द वुमेन्स लीडर्स फाउंडेड द फर्स्ट वुमेन्स एसोसिएशन लाइक आर्य महिला समाज इन 1882 एंड द भारतीय महिला परिषद, जिसकी स्थापना 1904 में हुई। This organization established women as agent rather than merely beneficiary of the reformer। यानी कि अब इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या काम किया कि इससे पहले जो राजा राममोहन राय और दयानंद सरस्वती, जिसने भी महिला के सुधार के लिए जो रिफॉर्म किए थे, उसकी मात्र एजेंट नहीं बनाया, उसकी एजेंट बनाने के लिए काम किसने किया? वुमन एसोसिएशन ने किया। एंड द मेकिंग द शिफ्ट टुवर्ड द वुमन सेल्फ डिटरमिनेशन। नाउ वी अंडरस्टैंड अबाउट द इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, यानी कि जो रिफॉर्म हुए उससे क्या किया? जो लीगल रिफॉर्म किए गए, अबोलिशन ऑफ सती, विडो रिमैरेज एक्ट एंड रिवॉल्यूशनाइज द इंडियन लीगल फ्रेमवर्क, यानी कि जो अभी भी सुधार किए गए थे वो एक तरह से एक्ट के थ्रू किए गए थे, यानी कि कानूनी प्रक्रिया से किए गए थे। और दूसरा क्या? तो वुमेन्स राइट, यानी कि रिफॉर्मर द कैंपेनिंग अबाउट द वुमेन्स राइट एंड एजुकेशन एंड ओपोज द चाइल्ड मैरिज एक्ट एंड support the widow remarriage and challenging the centuries of the gender discrimination and then laying the foundation of the future women's movement। यानी कि जो महिला की जो जिस तरह कई सदियों से महिला के साथ जो भेदभाव हो रहा था उसके समक्ष आवाज उठाई गई थी। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, यहाँ पे दो बात है। एक तो क्या है कि एक तरह से जो भारतीय जो समाज में जो धार्मिक सुधार किए गए उसमें कौन सा कानून को आधार बनाया गया, यानी कि लीगल रिफॉर्म किए गए, न कि सोशल मूवमेंट चलाई गई। सोशल मूवमेंट साथ साथ चल रही थी, लेकिन मेजरली इट सपोर्ट द लीगल रिफॉर्म। यानी कि इसका गैरलाभ क्या हुआ? एक तरह से एक जो समाज की बुराई है उसको दूर करने के लिए एक तरह से राज्य को जवाबदारी सौंप दी गई, लेकिन जो सोशल रिफॉर्म एक तरह से मूवमेंट की तरह चलने चाहिए उस तरह से नहीं चल सके। इसी वजह से कई बुराई सदियों तक चलती रही। एंड द सेकंड टॉपिक इज दैट इट इज द कैंपेनिंग अबाउट द वुमेन्स राइट। लेकिन अभी भी जो सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म हुए वो महिला को भेदभाव से दूर कर रहे थे, ना कि महिला को अधिकार दे रहे थे। यानी कि नॉट टॉकिंग अबाउट द इक्वल पेमेंट, नॉट टॉकिंग अबाउट द इक्वल वेजेस, ही ओनली टॉक अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमन, नॉट द promoting and equality with the woman. After the independent, we struggle about the equality of the woman and equal pay, which are added in the constitution under the DPSP. Now the education access, यानी कि हिंदू कॉलेज and college extend the learning beyond the elite and introduce the scientific thinking and creating a educational class that would later lead to independence movement। यानी कि जो एजुकेशन को प्रमोट किया गया, इस तरह से एक क्लास का डेवलप हुआ जिसने इंडिपेंडेंट मूवमेंट में अपना भाग दिया। एंड रिलीजियस रिफॉर्म लाइक ब्रह्म समाज, आर्य समाज एंड रामकृष्ण मिशन जैसे कई मिशन ने सोशल इश्यू को एड्रेस किया एंड चैलेंज the superstition and hegemony, the traditional belief with the modern value। and he also against the caste system, यानी कि जो एक तरह से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उस समय, उसकी दूर करने के लिए सोशल इक्वालिटी की बात की, जिसकी बात हम करेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य है कि जिस तरह से जो सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म हुए उससे क्या हुआ, जो समाज अभी तक डिवाइड था कहीं अपने रिलीजियस और डिस्क्रिमिनेशन से, उसको दूर किया गया और एक इंडिया की विभावना आई जिसने फ्रीडम मूवमेंट में अपने भाग दिया। नाउ वी टॉकिंग अबाउट दैट रिफॉर्म मूवमेंट्स अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान ज्योतिबा फुले ने दिया था, जिसने
सत्य शोधक समाज की स्थापना की एंड एस्टेब्लिश स्कूल एंड अनटचेबिलिटी एंड चैलेंज द ब्राह्मण ऑथोरिटी। यानी कि ज्योतिबा फुले ने उस समय तक सत्य शोधक समाज के द्वारा अनटचेबिलिटी को दूर किया और जो शेड्यूल्ड कास्ट थी उसको दलित नाम दिया। जो दलित कह रहे हैं उसका नाम ज्योतिबा फुले ने दिया था। एंड चैलेंज द ब्राह्मण ऑथोरिटी। Now we already discussed the Brahmo Samaj, and now we discuss about that M.G. Ranade established the Prarthana Samaj. In prelim, one-liner question can become that who established the Satya Sodhak Samaj? Just Jyotiba Phule. The Brahmo Samaj, Raja Rahammohan Rai, and Prarthana Samaj is under the M.G. Ranade. And in the south area, in the south part of India, there is two major movement is ongoing about that self respect movement, यानी कि आत्मसम्मान आंदोलन जो रामास्वामी पेरियार नायर के अंतर्गत चलाई गई थी। और एंड ही फॉट अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ लोअर कास्ट इन द साउथ इंडिया। एंड द टेम्पल मूवमेंट, टेम्पल एंट्री मूवमेंट, यानी कि जो नारायण गुरु है उसके अंतर्गत लोअर क्लास को जो भारतीय मंदिर, हिंदू मंदिर थे उसमें प्रवेश नहीं दिया जाता था, उसको दूर करने के लिए कैंपेनिंग फॉर द लोअर कास्ट राइट टू एंट्री इन हिंदू टेम्पल। अभी भी हम देखते हैं तो सबरीमाला का इश्यू आता है कि जब जहाँ वुमन को सबरीमाला में एक एज की वुमन को सबरीमाला में एंट्री नहीं दी जाती, उसके लिए मूवमेंट चल रही थी अभी तक। तो इस तरह से जो मूवमेंट है उसकी शुरुआत किसने की? नारायण गुरु ने, जिसने दलित को टेम्पल में अधिकार दिया। इससे क्या हुआ कि जो अभी भी उस समय दक्षिण भारत में इस तरह की सोच थी कि मंदिर में निम्न जाति को प्रवेश वर्जित था, लेकिन नारायण गुरु के मदद से भगवान की समक्ष निम्न जाति को भी अधिकार मिल गया। This pioneer movement challenged the rigid hegemony hierarchical structure that had dominant Indian society for centuries, and the leaders raised the social ostracism to establish the education institutes and advocate for equal right across the old caste. We already discussed the legacy, the rise of Indian nationalism. It helped to rise of Indian nationalism and promote the educational institutes and advocacy about the social justice framework. Now conclusion, lasting significance says about that cultural renaissance. It promoted the cultural renaissance and reformed the movement, revitalized the Indian culture while the modernized society. Intellectual awakening and global recognition and social progress. Now you can solve this prelim question, so that's why you can understand the topic better. The which 19th century reform is the known as the father of Renaissance? You can give a right answer in the comment section. Who found the Arya Samaj movement in 1875? Which reformer in the pioneer association with the campaign about the widow remarriage? Satya Sodhak Samaj, which worked for lower class right, was founded by? You can answer in the comment section. And which Muslim reformer founded the Aligarh movement? You can give in comment section. If you like lecture, please share and subscribe. Thank you.